ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر آپ گفتگو سن رہے تھے اور بہت ہسٹوریکل جو گفتگو ہے وہ قصوری صاحب بھی یہاں پر کہہ رہے ہیں, بٹالوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو دوبارہ ذرا بٹالوی صاحب کی طرف آتے ہیں. بٹالوی صاحب, آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس یہاں پہ کم ہو رہی تھی, زیادہ ہو رہی تھی, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا فیک تھا؟ 100% فیک تھا. لیکن پنجاب گورنمنٹ, پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, پنجاب حکومت, وہ بتا رہی تھی کہ بہت طبیعت ناساز ہے اور انہیں باہر جانا چاہیے. صاحب میں نے لفظ بولا 100% مینج تھا, یہ مینج کیا گیا. تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے ان کو بھیجنے میں؟ جب جج صاحب یہ سوال کریں گے کورٹ کے کہ آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیں, کبھی دنیا کی کسی جج نے, کسی بندے نے, کسی حکومت نے, کسی مارشل ایڈمنسٹریٹر نے یہ لفظ کسی ملزم کے بارے میں پوچھا کہ اس کی زندگی کی ضمانت دیں؟ تو جب نوبت جہاں تک آ جائے گی تو حکومت نے تو اپنے سرنڈر کرنا ہی کرنا تھا. لیکن پنجاب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس ہیں بٹالوی صاحب کہ ان کی پلیٹلیٹس کم ہے. جس طرح میرے بھائی یہاں پھر بہت کچھ کہنے کا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا جنہوں نے رپورٹ تیار کی تھی ان کو خریدنا, اگر ایک چھوٹا سا ذمہ دار اپنی مرضی کی قتل کی رپورٹ پہ گولی کلاشنکوف کی چلی تو وہ لیتا ہے یہاں تو چھری لگی تھی چھوٹی سی, اگر چھرا لگا ہو, تلوار لگی ہو تو کہتا ہے یہ تو کسی چھوٹی لگی تھی یہاں پہ, تو یہ اس کا تو کیا یہ ان ڈاکٹروں سے اس قسم کی رپورٹ لینا مجھے بتائیں. اس کا مطلب جو مشکل تھا ڈاکٹر یاسمین راشد ہے وہ تو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ تو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کوئی لیب کی انچارج یا پیتھولوجسٹ نہیں ہیں, وہ گائنیکالوجسٹ ہیں, اور انہیں اس کی بیماریوں کو تو یقینی طور پہ اس کی ماہر ترین خاتون ہے اور انتہائی رسپیکٹیبل خاتون ہے, رسپیکٹیبل فیملی کی ہیں, رسپیکٹیبل خاندان کی ایک ان کی بہو ہے. اور خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا, قصوری صاحب بلکہ آپ سے پوچھوں گا, جو خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ بالکل میرے پاس جو رپورٹس آ رہی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے جو رپورٹ جانی ہے اسی پہ بیٹھ کے کہنا نا, رپورٹ گئی وہ تھی مینج تھی, جو جعلی تھی, فیک تھی. اور اگر آپ کے سامنے میں رپورٹ لا کے رکھ دوں گا, آپ لوگ پرائم منسٹر آپ کیا کہیں گے پھر کہ مجھے رپورٹ وہی ملی ہے کہ بیمار ہے؟ جی قصوری صاحب, فیضان صاحب بات آپ بتا رہے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ ایک دن جا کے وہ بندہ داخل ہوا وہاں پہ, اس قوم پر لوٹا پوری طرح, جہاں شور مچا تھا مر گیا تو یہ ہو جائے گا, مر گیا تو قیامت آ جائے گی پاکستان پہ, پاکستان ہی ڈوب جائے گا, اور عمران خان کے قتل کا پرچہ کروا دیں گے. مجھے بتائیں کہ وہ بندہ آدھے گھنٹے کے لیے ہاسپٹل گیا, کوئی بتا دے مجھے پاکستان میں, تو اس سے بڑا اداکار کون ہے, اسے لا کے فلموں میں لائیں اسے. تو قصوری صاحب جو یہ اپوزیشن کی اور حکومت وقت کی جو آپس میں ہمیشہ لڑائی دکھائی دیتی ہے, آپ کو کوئی اس طرح کا فارمولا کوئی نظر آتا ہے کہ حکومت کو اور اپوزیشن کو ایک پیج پر لے آئیں تاکہ عوام کے لیے کچھ ہو سکے؟ یہ صرف لڑائیاں ناصفہ جو دکھا رہے ہیں عوام کے لیے, لیکن اس کا رزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں پہلی تو بات ہے حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پہ آنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو بلکہ زیادتی ہے, جو یہ تو ایک قسم کا اگر مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پیج پہ, اس کا مطلب تو یہ ٹائٹل بن جائے گا اپرچونسٹ کلاسز کا اور ریگولیٹر کا. یہ تو پھر پاکستان کے عوام کو جو تھوڑی بہت ہو سکتا ہے کوئی جو سانس لینے کی اجازت ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ صاحب یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو جو مسائل درپیش ہیں, بجائے کہ سیاسی اپنی لڑائیاں کرتے ہوئے وہ ٹائم ضائع کریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کے اندر عوام کے لیے دیکھیں اس وقت جو بات ہے کہ حکومت ہے, جب آپ عوام کو نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے, اس کو مطلب ہے کہ کہا ہے کہ آپ مطلب ہے کہ ہمارے لیڈر ہیں, تو ان کا کام ہے وہ پلاننگ کریں, وہ پالیسیز وغیرہ لائیں, بہتر طریقے سے مانیٹری کا نظام کریں اور عوام کو سہولت پہنچائیں. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن کا تو کام ہے کہ وہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ گورنمنٹ کے جو مطلب ہے کہ اقدامات ہیں, جو سٹیپس ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے تنقیدی پوائنٹ وغیرہ نکال لیے جائے. اور دوسری جو بات جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ فیض صاحب, وہ ایک آپ پاکستان کے اس وقت کے نظام کو سمجھیں. اس وقت پاکستان کے نظام میں تحریک انصاف کا ایک سپاہی بھی نہیں ہے. اگر آپ مطلب اگر نیچے سپاہی سے لے, وہ اپنا چیف سیکرٹری سے لے کر اور نیچے تک پی ایم تک چلے جائیں, پاکستان کا چاہے فیڈرل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, چاہے مطلب صوبوں کا ہے, چاہے ڈسٹرکٹ کا ہے, یہ تمام وہی لوگ ہیں جو 35 سالوں سے کسی نہ کسی طریقے سے برادر مافیا کا حصہ رہے ہیں, اور برادر مافیا نے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر کے اپنی ترغیبات کو ترجیح دے کر اور اپنے مفادات کے لیے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو آج بھی ان کے کام آ رہے ہیں, جو آج بھی ان کے لیے جعلی رپورٹیں تیار کر رہے ہیں. یہ تو احسان صاحب نے کہا ہے کہ یاسمین راشد کیا کرتی,
वहाँ जो सुप्रिटेंडेंट है इसका अपना सर्विसेज हॉस्पिटल का, वो उनका शहबाज शरीफ का नामजद। जो जनरल हॉस्पिटल का जो वाइस प्रिंसिपल है, जो उस कमेटी का मेंबर था, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नामजद। उसके बाद गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो नुमाइंदे, वो सारे उनके। तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने इस किस्म का इन्वायरमेंट जाली तौर पे तैयार किया। यूं लगता था कि जैसे नवाज शरीफ है ना, अब आगे 2-3 दिनों की बात है तो कोई भी उस वक्त, जैसा कि एहसान साहब ने कहा कि जब सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि आप इसकी गारंटी दें कि कल को 3 घंटे, हालांकि गवर्नमेंट इमरान साहब ने तो सिर्फ यही बात की थी ना कि इनसे 7 अरब रुपए की हम वो एडम्प्टी बॉन्ड लेंगे, गारंटी भी नहीं, एडम्प्टी बॉन्ड लेंगे, उस पर भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ये आप बताएं 3 घंटे का लिए जिंदा रहेगा। उन्होंने रातों रात मतलब है कि उसको ब्लैंकेट बेले भी दी, फिर वो गया भी। अब आप देख लें, ना उसको मतलब कैंसर है, ना उसको कोरोना है, ना उसको टीबी है, ना उसको एड है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में खुद उनके जो वकील हैं, जो ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने जिस वक्त बेल के लिए इस पे हेल्थ ग्राउंड पर बेल के जब अप्लाई की थी, तो उन्होंने बताया था कि मियां नवाज शरीफ को कैंसर है, नवाज शरीफ को मतलब ब्लड प्रेशर है, उसको बाद उसको जो ये क्या होती है शुगर है, उसके बाद उन्होंने कहा कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि हम अदालत को नहीं बता सकते, और वो बीमारियां उन लोगों को होती हैं जो लोगों को खफा नहीं करते। लेकिन कसूरी साहब, जब नवाज शरीफ साहब को अदालत ने नाअहल किया था, तब तो अदालत के हमने बहुत अप्रिशिएट किया था उसके इस फैसले को, लेकिन कुछ इस तरह के उसके फैसले जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह? यहाँ तो हम यकीन करें तो पूरा करें अदालत पे, या अगर नहीं करना तो हम नहीं, सारी चीजों। मैंने तो अदालत पर ये नहीं कहा कि अदालत पर कोई एतमाद नहीं कहा, ना ही हम ये कर सकते हैं। हम तो एक वाकयाती सर्कमस्टांसेस, जैसे कि एहसान साहब ने कहा, ये सर्कमस्टांसेस हुए हैं। और बात ये खुद, बल्कि जहां तक ये इनकी जो बेल है, इन पर आसिफ सईद खोसा साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा कि इन्होंने जो इनकी जमानतें वगैरह ली हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बेल के पैरामीटर हैं, क्राइटेरिया है, उसको नजरअंदाज किया है। आइंदा इस पे मतलब कोई नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। उन्होंने पैरामीटर्स को बहुत और मौसर तरीके से बनाया। सर बिल्कुल आप ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम पिछली वाली बात पर आ जाएंगे, जिस तरह आप कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सारी उन्हीं की, मियाँ साहब की लगाई हुई है, वो जहाँ जहाँ पर भी। तो सर कितना इंतजार अभी अवाम और करे कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल पीटीआई नहीं, ये देखे बात, ये कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं यहाँ भी प्रोग्राम में भी एहसान साहब ने भी कई मरतबा कहा है, इसके लिए हमेशा ये तरीका होता है, जो मतलब यूरोप में भी, अमेरिका में भी, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो 20,000 25,000 के करीब अपने वो लोग माहिरीन की शक्ल में, पार्टी के जो लोग हैं उनके पॉलिटिकल, उनके बाद उनके जो चैम्बर्स के लोग हैं, बिजनेस हाउसेज के लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनको लेकर आते हैं मुख्तलिफ पोस्टों के लिए। तो इसके लिए भी एक लेटरल एंट्री का सिस्टम है। उसके जरिए इमरान खान साहब को चाहिए था कम से कम 5,000 आदमी 17 से लेकर 22 ग्रेड में। यह नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर के जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी वो भी हैं, फिर इकोनॉमिक हिटमैन है, उनसे सिलेक्शन की जा सकती है। क्योंकि जब आपने अपनी पॉलिसियों को मुअस्सर बनाना है और आवाम को रिलीफ जो ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए जब तक आप के पास मुअस्सर निजाम नहीं होगा, मुअस्सर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो अवाम को आप तो ये सहूलियात है ये नहीं पहुंच। मैं सिर्फ 1 मिनट में ये बात कर लूं। दूसरी बात है जो आपने महंगाई का कहा था, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको आप एक ही नजर से ना देखें। उसमें बेसिकली ये था कि हुकूमतें जो पहले 70s में जब एक मरतबा क्राइसिस आया था, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर को रीएक्टिवेट किया था ताकि इकोनॉमी में बैलेंस आए। तो फर्टिलाइजर में, ऑटोमोबाइल में, पेट्रोलियम में, सीमेंट में और दूसरे घी में जो और शुगर में हमने पब्लिक सेक्टर को रिएक्टिव, ये इन्होंने बगैर मनसूबाबंदी के, बगैर जरूरत के और कवायद और ज़वाबत को नजरअंदाज करके खरब हार रुपए के जो इदारे थे वो औने पौने अपने साथियों को तकसीम किए। आज ये सूरत हाल हो गई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पूरा जो सिस्टम है
प्राइवेट सेक्टर की मतलब है फेवर में हो गया है। आप एक एक आदमी के पीछे मतलब है कि 10 सफाई नहीं बिठा देंगे। या दूसरा ये है कि इसके लिए दूसरा जो हम लोगों ने सोचा था कि हम मतलब बैलेंस रखने के लिए रीजनल ट्रेड की बात की थी। वो रीजनल ट्रेड भी हमने पॉलिटिकल हालात की वजह से वो भी हम लोगों की सस्पेंशन हुई है, कहीं से कम हुई है। इसलिए जो हमारे पास दोनों बैलेंसिंग फैक्टर थे, रीजनल ट्रेड वाला, बैलेंसिंग फैक्टर वाला, दोनों कम हो गए हैं। तीसरा जो इसमें फैक्टर आया है, जो हमारे रेगुलेटर हैं, वो उनका जो किरदार है, जैसे कंपटीशन कमीशन था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, नेपरा है, पेपरा है, ये है वो, वहां भी अब जो मैनेज करने की जो सलाहियत है वो बढ़ती जा रही है, वो इन्फ्लुएंस की शक्ल में, चमक की शक्ल में। तो इसलिए जो लोग हैं, अब देखें ना, जैसे शुगर का सिर्फ आधा मिनट, सिर्फ एक थोड़ा सा, सिर्फ आधा मिनट, कि जैसे शुगर मिल की हुकूमत पाकिस्तान ने शुगर की क्राइस की इंक्वायरी कराई, आप देखें उसकी जनाब मतलब उनको मतलब हालांकि दुनिया की हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है कि या तो मॉडल टाउन में जो कत्ले आम हुआ था उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसका स्टे हुआ। दूसरा, हुकूमत ने जब शुगर में माफिया के खिलाफ इंक्वायरी की और उसकी रिपोर्ट आ गई तो उसके खिलाफ मतलब गैस स्टे आ गए। तो जब आप इस तरीके से गवर्नमेंट के इकदामात को मतलब गैर मुअस्सर करेंगे तो अवाम को रिलीफ ट्रांसफर नहीं हो सकता। चलें, इसके ये आपने बहुत इंफॉर्मेटिव सारी बात की है, लेकिन इसमें सियासतदानों को भी सोचना ही चाहिए कि पहले जब वो इलेक्शन में आते हैं वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन बाद में ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही। पहले आवाम को ये चीज़ बतानी चाहिए और होमवर्क भी पहले करें कि जिस तरह आपने बिल्कुल बताया कि किस तरह इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, इसके प्लान्स क्या होने चाहिए। डाल साहब, मैं बिल्कुल टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, अगर पाक भारत की बात करें ताल्लुकात की, तो 150 से ज़ायद दफ़ा वो LOC का जो एक एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर का, उसकी वो खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। आज फिर उन्होंने इसी तरह की जो होचे हथकंडे हैं वो नहीं छोड़े, आज भी इस तरह की हरकत की है। तो सर, ये जो पाक भारत ताल्लुकात है, जो इंटरनेशनली पिछले दिनों कलभूषण का भी हमने दिल बड़ा किया, पाकिस्तान ने उन कलभूषण को कौंसल रसाई भी दी, तो इससे अब हमारा क्या फ़ायदा होगा, कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा? और अब तक जितनी सियासी पार्टीज पाकिस्तान में रह चुकी हैं, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जितना उन्होंने हिस्सा अपना डाला JUI समेत, वो सर इनफ था? फैज़ान, सबसे पहले तो मैं कलभूषण की बात करता हूँ जी। आप शायद ये चीज़ भूल रहे हैं कि कलभूषण को जी आपके भगोड़ों ने जो लंदन बैठे हैं, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के जी उन्होंने गाइड किया था कि आप जो आलमी अदालत है उसमें चले जाओ। जी। अगर ये अपने दौर में उसको ट्रायल करके उसको फांसी दे देते तो पाकिस्तान का एक दुश्मन अपने कैफरे किरदार को पहुंच जाता। जी। लेकिन ये अपनी दोस्तियां निभाने के चक्कर में इंडिया के साथ इन्होंने उसको मैक्सिमम टाइम दिया, मैक्सिमम मौका दिया। अब जो कौंसिल तक रसाई है ना, ये चार्टर UN चार्टर के मुताबिक है। जो अपील का हक है ये भी UN चार्टर के मुताबिक है, आलमी अदालत के फैसले के मुताबिक है। इसमें गवर्नमेंट कोई फेवर नहीं दे रही। आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कानून के मुताबिक चल रही है, आप ये कह सकते हो। तो बाकी जो कश्मीर का इशू है ये आप क्या समझ, अब तक जितनी सियासी पार्टीज आई उन्होंने अपना हिस्सा जितना बनता था उतना किया है, ये कम था, ये क्या उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही? आप पहले ये गौर करें कि पार्टियां कितनी आई। ये तो मैं अब वो लफ्ज़ अगर दोहरा दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। कसूरी साहब को याद है, ये भी शाही किले में रहे, ज़ियाउल हक जैसे मुनाफिक आज़म ने इनके बारे में ये कहा था कि अगर मैं सियासतदानों के बारे में उससे कहा था कि अगर आज मैंने बुलाऊं तो ये दुम हिलाते चले आएंगे, और इनमें से मेजॉरिटी यकीन जाने दुम हिलाती ही चली गई थी जब उसने बुलाया था। में से शूरा भी बन गई थी और उसके बाद नेशनल असम्बली भी बनी, उसके बाद वज़राए आज़म भी आए, और उस जाहल मुतलिक पे, मुनाफिक आज़म पे जिसका नाम ज़ियाउल हक था, उसके कहने पे तो आप यहाँ की क्या बात करते हैं मेरे भाई? इक़्तिदार चाहिए, पैसा चाहिए, लूट मार का हिस्सा चाहिए, जिधर मर्जी ले जाओ, जिसके मर्जी पीछे लगा दो, इन्हें कह दो आप लूट मार कर लें जितना मर्जी। नरेंद्र मोदी को आपका बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये कहेंगे जी मोस्ट वेलकम, ले आए, हमें सिर्फ हमें ना रोका जाए।
हमें पूछा ना जाए जैसा ये अंडर ट्रेनिंग सियासतदान कह रहे जी नैब को ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसने जो लफ्ज़ बोले थे कि अगर चेयरमैन नैब को हया हो तो मैं कहता हूँ इसको हया की एक रत्ती बराबर शर्म गैरत हया हो इसमें तो ये खुदकशी कर ले कि जिसका जितना बदनाम इसका बाप है औरतों और पैसे के बारे में। क्या जो अयान अली पकड़ी गई थी उसने एयरपोर्ट पे ये नहीं कहा था कि मैं खातून अव्वल हूँ, मैं जरदारी की बीवी हूँ, और उसने बरसरेआम कहा कि मैं चंद दिनों तक इसकी, फिर उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी कि मैं इसकी बीवी बनने वाली हूँ। यहाँ क्या आप बात करते हैं? आप इसको कहेंगे ये लफ्ज बोल रहे हैं कि चेयरमैन ने आपको हया हो, इसको हया हो तो ये डूब मरे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस कसूरी साहब की तरफ आता हूँ। कसूरी साहब बिल्कुल टाइम बहुत थोड़ा है, शॉर्ट लाइन में आपका आंसर जी। कश्मीर का एक मैं फिक्र और कहना चाह रहा हूँ, इसको ये भी हया होनी चाहिए कि जिस बाप ने उसको डिसऑन कर दिया, डिसऑन से मतलब है उससे अपना नाम जरदारी हटा के पहले भुट्टो का नाम ले आया। मुझे बताएं उससे बड़ी बदकिस्मत औलाद क्या होगी जिसका बाप उसको डिसऑन कर दे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह करे सेटअप हमारा पॉलिटिकल भी ठीक हो। बिल्कुल लास्ट एक लाइन में सर प्लीज जवाब दीजिएगा कि ये जो पाक भारत ताल्लुकात हैं कश्मीर में, इसका हल किस तरह आप देखते हैं, किस तरह निकलेगा सर? देखिए जी, पहली तो बात है इसके लिए एक वसी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप, कश्मीर की लीडरशिप और मुसलमान ममालिक जैसे मिडल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं हमारे दोस्त, उनका कोई एक मुअस्सर ग्रुप बने और इस पर वो काम करे कि जो मुसलमानों के मफादात, देखिए जब कश्मीर में ही मुसलमान नहीं बैठे, हमारे 30 करोड़ हिंदुस्तान में भी मुसलमान बैठे हैं, उनके भी हमने मफादात को देखना है। कोई ऐसा सोल्यूशन जो सिर्फ हम वन वे करेंगे उससे हिंदुस्तान में जो बैठे हुए हमारे मुसलमान हैं वो भी मुतासर होंगे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कश्मीर की जब बात करते हैं तो हमें एक वसीउल बुनियाद। साहब 80 लाख से जायद बंदे यरगमाल हैं, अपने घरों में कैद हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं, मैं तो ये सिवाय एक तुर्की के किसी मुसलमान मुल्क में ये जज्बा इंसानियत और इस्लाम पैदा हुआ कि वो इसके लिए आवाज बुलंद करे? देखिए जी, इसके लिए वसीउल मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। माजरत के टाइम जरा इशू था और टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हमने जो अवाम के मसाइल हैं उसको यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की कि उसके हल निकले। कश्मीर की अगर बात करें तो इतने साल हुकूमत करते हुए भी अभी भी हमें ज़रूरत है एक प्लान की कि उस प्लान के तहत कश्मीर को आज़ाद किया जाए। और कश्मीरी जो अवाम है अभी भी उसकी नज़र पाकिस्तान पर है, अभी भी वो मरते हैं, शहीद होते हैं तो पाकिस्तान के झंडे के अंदर उनकी जो बॉडी है वो ले जाई जाती है। इसके बाद बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून, और इसकी बात करें अगर JUI की तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएंगे इकट्ठे और वो हुकूमत को एक टफ टाइम देंगे। इसके ऊपर मजीद भी जो बातें वो भी हम करते रहेंगे और नए जो इश्यूज हैं वो भी लेकर आएंगे, स्पेशली जो यूट्यूब के ऊपर उसे क्या पहले अपने बाप की लूटी दौलत वापस कर दो, बिल्कुल और मौलवी साहब को भी कहें 43 लाख की लस्सी जो उसने पी है उसका बिल ही दे जाए। बिल्कुल, नेक्स्ट हम लस्सी पर भी बात करेंगे, नाश्ते पे भी बात करेंगे, सियासी जो बंदे हैं, सियासी जो लोग हैं, कितना खर्च इसके ऊपर हो रहा है। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। कल हम नए प्रोग्राम और नए सोच और आपके आवाम के मसाइल और उसके वसाइल के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।